Hello, my dear students. I am Namita Pant and I am lecturer English in Government Polytechnic Dehradun. As you all know that for the past few days, we have been discussing the course of the syllabus of English and Communication Skills semester 1 for Uttarakhand Polytechnic. In that, we have reached the fourth chapter that has been mentioned in your syllabus in literature section. It is called A Night Among the Pines by R.L. Stevenson. A Night Among the Pines is actually a travelogue written by him. I think you already know from the word travelogue that it is a thing or an article written when one travels after a travel. That the thing that is written, the article about that travel that is written, it's called a travelogue. So it is a travelogue written by R.L. Stevenson. He was a very famous writer of early 19th century. Let's go through the chapter and find out the beauty in it. See, this is the image of R.L. Stevenson. The full name was Robert Louis Balfour Stevenson. RL, the B is missing from the abbreviation that he uses for Stevenson, RL Stevenson, Robert Louis Stevenson. Okay. He was, as I already mentioned, that he was a very great writer, very great essayist of his times, R.L. Stevenson. And you'll come to know more about it when you go through the chapter. So let's move forward. He belonged, though he was from Great Britain, but he was not from England actually. He was from Scotland. The Highlands of England, the Highlands of Great Britain are called Scotland. It's another country. And the people there, we call them Scottish people. Okay. So this is the chapter. See, from Blamard after dinner, although it was already late. Okay. One thing I forgot to mention earlier. This chapter, it was a travelogue and he had traveled with his donkey there, and the name of that donkey was Modestine. The name has been mentioned in this essay. Some people may think in some of the videos that I've watched, people say that this Modestine was a dog or some call it a goat, but it was not a dog or a goat, but it was a donkey, a pet donkey that R.L. Stevenson had. Okay, it'll come later on in the chapter and we'll come to know. From Blamard after dinner, although it was already late, I set out to scale a portion of Lozère. See, these places have been mentioned here. Lozère is the name of a place, and you can already see that there is a stress mark. This thing, the mark that is coming up over this E is known as a stress mark. That means we have to pronounce that. It will not be pronounced Lozère as it can often be called, but it will pronounce with the pronunciation, the stress on E. So we'll have to pronounce it Lozère. Okay. From Blamard, this is also a place we can you can easily see that it's the B is written in capital letter. From Blamard after dinner he went from Blamard to Lozère. I set out to scale a portion of the Lozère. Though it was already late, he says, though it was already late, but I still started on my journey. An ill-marked stony road guided me forward. Ill-marked, there were no proper marks over there. Stony drove, it was a way which was full of stones. It was not a very pakka road, that means we can call it. Okay. So it was marked very poorly. We could not see any what we call them milestones there. Okay. So he moved forward and I met nearly half a dozen bullock carts descending from the woods, each laden with the whole pine tree for the winter's firing. And when he was going up, what did he meet in the way? He met half a dozen bullock carts. बैलगाड़ियां मिली उसे रास्ते में, which were full of woods. लकड़ियों से भरी हुई थी. Each laden with a whole pine tree. Pine, you know, pine is चीड़ का पेड़ को, चीड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं पाइन. ठीक है. तो एक पूरा का पूरा पाइन ट्री एक एक बुलक कार्ट में रखा हुआ था. किसके लिए ला रहे थे वो? They were bringing them for those woods for winter firing, सर्दियों की आग के लिए. This is an old essay. I had already told you that R.L. Stevenson was from early 19th century. ठीक है, तो ये पुराना समय है. At the top of the woods which do not climb very high upon this cold ridge, I struck leftward by a path among the pines until I hit on a dell of green turf. इन जंगलों के ऊपर, यहाँ पे जो पेड़ थे इनके ऊपर जाके, जो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था, कोल्ड रिज से बहुत ज्यादा हाई नहीं था. ये रिज होती है टॉप किसी भी पहाड़ का. ठीक है, तो वहां रिज से बहुत मतलब बहुत ऊपर तक मुझे नहीं जाना पड़ा. मैं रिज में पहुंच गया और उसके ऊपर जाके मुझे क्या मिला, लेफ्ट की तरफ में गया. एक रास्ता जा रहा था पाइन्स के
मतलब पाइन माने चीड़ के पेड़ का जंगल था, उसी के साथ साथ लेफ्ट को एक रास्ता जा रहा था. एंड ही रीच्ड अ डेल ऑफ ग्रीन टर्फ. ही रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ ग्रीन ग्रास. टर्फ माने बोलते हैं घास के मैदान जैसा बिछा हुआ है, तो वहां पे ग्रीन टर्फ था, बहुत हरी भरी घास थी. वेयर अ स्ट्रीमलेट मेड अ लिटिल स्पाउट ओवर सम स्टोन्स टू सर्व मी फॉर अ वाटर टैप. जहां पर एक छोटी सी स्ट्रीम थी, नाला जैसा समझ लो, छोटा सा पानी का स्रोत समझ लो, जहां उसमें से ऐसा लग रहा था जैसे एक स्पाउट, स्पाउट माने काफी अच्छा सा धारा कहते हैं ना हमारे पहाड़ में, तो ऐसे धारा सा था पानी का, अच्छा सा स्रोत वहां से निकल रहा था कुछ पत्थरों के बीच में से. ऐसा लग रहा था मानो मुझे पानी का इंतजाम वहां पर मिल गया हो, जैसे मेरे लिए वाटर टैप लगा. इन अ मोर सेक्रेड और सिक्वेस्टेड बावर नॉर निम्फ नॉर फॉनेस हॉन्टेड. ऐसी जगह थी जहां पर ही हैज टेकन दिस लाइन फ्रॉम सम अदर टेक्स्ट, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है. मैं इस शांत जगह में पहुंच गया था जहां पर ना तो निम्फ थे, निम्फ होते हैं पेड़ों पर रहने वाले स्पिरिट्स, दे आर एक्चुअली नॉट रियल थिंग्स, दे आर माइथोलॉजिकल थिंग्स. निम्फ माइथोलॉजिकल होते हैं, मतलब इमेजिनरी कहानियों में होते हैं. और ना तो फॉनस थे, दीज आर ऑल्सो इमेजिनरी mythological beings. वहां पर कुछ भी नहीं था. I was in a very quiet, peaceful and very happy place. The trees were not old. बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, बहुत पुराने पेड़ नहीं थे, but they grew thickly round the glade. लेकिन उस पानी के आसपास वो बहुत गहरे, बहुत ज्यादा घने लगे हुए थे. There was no outlook except northeastward upon distant hilltops. ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ सिर्फ हिल टॉप थोड़ा सा नजर आ रहा था. ठीक है. और स्ट्रेट अपवर्ड टू द स्काई, मतलब सब तरफ से घिरा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट की साइड में थोड़ा सा खुला था और या फिर ऊपर खुला हुआ था जहां से आसमान नजर आ रहा था. एंड द एनकैंपमेंट फेल सिक्योर एंड प्राइवेट लाइक अ रूम. और क्योंकि ऐसा चारों तरफ से घिरा हुआ था, तो ये जो एनकैंपमेंट था, मतलब जो मेरा कैंप सा मैंने यहाँ पे बनाया था, वो बड़ा सिक्योर और प्राइवेट लग रहा था, ऐसा मानो कि कोई रूम हो, एज इफ इट वॉज अ रूम. ठीक है, प्राइवेट रूम फॉर माई सेल्फ. Let's see now. By the time I had made arrangements and fed Modestine, see, I was mentioning ना, इसका नाम यहाँ पर आएगा Modestine, a pet donkey of R.L. Stevenson. ठीक, इसको बल्कि ये जो ऐसे है, इस ऐसे को का जो बिगर पोर्शन है, इसको बोलते हैं ट्रेवल्स विद माई डोंकी. ये उसके अंदर से लिया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है आपका. ठीक है. बाय द टाइम आई हैड मेड अरेंजमेंट्स एंड फेड मॉडेस्टीन, द डे वाज ऑलरेडी बिगिनिंग टू डिक्लाइन. दिन खत्म हो रहा था. डिक्लाइन मींस नीचे को जा रहा था, यानी कि खत्म हो रहा था. आई बकल्ड माई सेल्फ टू द नीज इन टू माई सैक एंड मेड अ हार्टी मील. मैंने क्या किया, अपने सैक में मैंने ढूंढा और अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाया. एज सुन एज द सन वेंट डाउन आई पुल्ड माई कैप ओवर माई आईज एंड फेल अस्लीप. जैसे ही सूरज डूबा, मैंने अपनी टोपी को अपनी आंखों पर ढका और सो गया. Night is dead monotonous period under a roof. Now this is a general sentence that the writer presents his view about what is the difference of sleeping under an open sky or under a roof. बोलते हैं कि नाइट जो होती है वो बिल्कुल डेड होती है और मोनोटोनस होती है. मोनोटोनस माने एक जैसी, जिसमें कोई चेंज नहीं होता. ठीक है. जब हम किसी छत के नीचे सोते हैं तो रात जो है बिल्कुल एक जैसी और डेड फील होती है. बट इन द ओपन वर्ल्ड इट पासेस लाइटली. लेकिन जब हम खुले आसमान के नीचे सोते हैं तो वो धीरे धीरे पास हो रही होती है. कैसे? विद इट स्टार्स एंड ड्यूज एंड परफ्यूम्स. कभी स्टार्स नजर आते हैं, कभी ड्यू आती है. ड्यू माने क्या होती है? ओस. और कभी परफ्यूम्स. और परफ्यूम्स किस चीज की? आसपास जो घास है, फ्लोरा है, फोना है, मतलब पेड़ है. देखो पाइन की खुशबू आ रही होगी, उसे घास की खुशबू आ रही होगी, कुछ जंगली फूल होंगे उसकी स्मेल आ रही होगी. तो ये सारी चीजों से भरी हुई होती है व्हेन वी आर स्लीपिंग इन एन ओपन वर्ल्ड. ठीक है, अंडर एन ओपन स्काई. एंड द आवर्स आर मार्क्ड बाय चेंजेस इन द फेस ऑफ नेचर. और हर घंटा जो है हमें नेचर के फेस में चेंज होता हुआ दिखाई देता है. द नाइट इज नॉट जस्ट वन डार्क थिंग. जब हम कमरे के अंदर सो रहे होते हैं तो जब तक हम अपना पर्दा नहीं हटाते हमें नहीं पता चलता वेदर इट इज डे लाइट और नाइट कंटिन्यूइंग, है ना. लेकिन जब हम बाहर सोते हैं तो हर घंटे में हमें नेचर में चेंज होता हुआ दिखता है. What seems a kind of temporal death to people choked between walls and curtains is only a light and living slumber to the man who sleeps afield. जो कि किसी व्यक्ति को दिखता है, क्या दिखता है? एक टेम्पोरल डेथ जैसा, एक टेम्पररी
डेथ जैसा नजर आता है उन लोगों को जो कि वॉल्स और कर्टन्स के बीच में के साथ सोते हैं। मतलब जब हम कमरों में सोते हैं तो हमारे दीवारें होती है, कमरों में पर्दे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम टेम्पररी डेथ की ओर जा रहे हैं। मतलब हमें कोई चेंज नहीं नजर आता, थ्रू आउट द नाइट इट इज द सेम। बट for a person who is staying outdoors is only a light and living slumber to the man who sleeps afield। afield माने बाहर, ठीक है। पर जो व्यक्ति बाहर सोता है उसके लिए पूरी रात जो है एक जीवित और हल्की सी स्लम्बर, मतलब नींद तो होती है लेकिन वो ऐसी रहती है कि हम नेचर के साथ भी कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है। जीता जागती नींद हमें फील होती है, ऐसा नहीं लगता कि हम मर गए, ऐसा लगता है जैसे हम जीवित हैं और फिर भी सब कुछ नेचर के साथ साथ हम फील करते हैं हर चीज। ऑल नाइट लॉन्ग ही कैन हियर नेचर ब्रीदिंग डीपली एंड फ्रीली। पूरी रात भर नेचर को आप अपने आसपास महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो दैट इट इज breathing deeply and freely because you are in between or you are among so many things that belong to nature: grass, birds, okay, insects, trees. There are so many things around you that you can feel nature along with you. Even as she takes her rest, जब वो रेस्ट में भी होती है, एक ऐसा समय भी आता है जब रात भी बिल्कुल चुप हो जाती है। शी टर्न्स एंड स्माइल्स, उस समय भी वो टर्न करती रहती है, टर्न करती रहती है मतलब चेंज होती रहती है। नाइट थ्रू आउट इज नॉट द सेम व्हेन वी आर इन एन ओपन स्काई, अंडर एन ओपन स्काई, ठीक है। वो चेंज होती रहती है एंड स्माइल एज इट फील्स एज इफ इट इज स्माइलिंग। सी, नेचर एन इज कैपिटल हियर एंड इट इज कॉल्ड एज शी। दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं, अगर हम ये कहीं पोएट्री में होता तो हम इसे क्या बोलते, इसको हम बोलते पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं मानवीयकरण। हमने नेचर को यहाँ पे मनुष्य का कोई गुण दे दिया, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं इसे। पर्सोनिफिकेशन माने ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं अलंकार है। ये नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया है, शी बोला है, ठीक है। She turns and smiles and there is one stirring hour unknown to those who dwell in houses। और ऐसा स्टरिंग आवर माने मूवमेंट वाला, स्टर करने वाला क्या होता है, जिसमें मूवमेंट हो रहा हो। हर घंटा कोई ना कोई मूवमेंट होता रहता है जो कि घर के अंदर सोने वालों को फील नहीं हो सकता। दे आर अननोन टू दैट फीलिंग, ठीक है, बिकॉज दे आर इनसाइड अ हाउस, दे आर इन विद इन सम वॉल्स, ठीक। व्हेन अ वेकफुल इन्फ्लुएंस गोज अब्रॉड over the sleeping hemisphere and all the outdoor world are on their feet। ऐसा लगता है जैसे कोई जागृत इन्फ्लुएंस, मतलब जीता जागता असर हम पर हो रहा है। सारे सोए, ऐसा लगता है हेमिस्फेयर मींस क्या होते हैं, जो एंड्स हैं हमारे, है ना, कोने, क्षितिज जो है, वहां पे ऐसा लगता है वो सारे सो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हर कुछ जाग रहा है। हर कुछ, हर चीज में वेकफुल इन्फ्लुएंस है, जागृत इन्फ्लुएंस है। एंड ऑल द आउटडोर वर्ल्ड आर ऑन देयर फीट। और ऐसा लगता है जैसे पूरा जो बाहरी दुनिया है वो मूवमेंट कर रही है, रुकी हुई कुछ भी नहीं है, हर चीज हर समय मूव कर रही है। बिकॉज इट इज चेंजिंग टाइम, है ना, इट इज चेंजिंग द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टाइम, ठीक है। आगे देखिए, इट इज देन दैट द कॉक फर्स्ट क्रोज। उस समय ऐसा होता है जब कॉक सबसे पहले, मुर्गा जो है सबसे पहले पहली बार बांग देता है। नॉट दिस टाइम टू अनाउंस द डॉन, नहीं, सुबह अनाउंस करने के लिए नहीं। डॉन मतलब होती है भोर। व्हेन टू टाइम्स मीट दैट इज कॉल्ड इन द मॉर्निंग, दैट इज कॉल्ड डॉन। एंड व्हेन टू टाइम्स मीट इन द इवनिंग दैट इज कॉल्ड डस्क, ठीक है। इसका ऑपोजिट जो होता है वो डस्क होता है। डॉन मतलब भोर का समय, ठीक है। बट लाइक अ चीयरफुल वॉचमैन स्पीडिंग द कोर्स ऑफ नाइट, लेकिन बड़ी खुशी खुशी एक वॉचमैन की तरह वो क्रो करता है, सीटी बजाता है कि हाँ अभी रात बाकी है, ठीक है। कैटल अवेक ऑन द मेडोज, घास के मैदानों में जितने चरने वाले जीव होते हैं वो सारे उठ चुके होते हैं। शीप ब्रेक देयर फास्ट ऑन ड्यूई हिल साइड, शीप जो है अपना फास्ट, अपना रात भर का व्रत तोड़ के कहाँ अब चरने के लिए शुरू हो जाते हैं, हिल साइड में। ड्यूई हिल साइड, कैसी हिल साइड होती है वो, ब्यूटीफुल कंपैरिजन हियर। ऐसी हिल साइड, ऐसे माउंटेन के साइड में वो जाते हैं जहां पर की ओस पड़ी हुई है, वहां वो अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं। एंड चेंज टू अ न्यू लेयर अमंग द फर्न्स, और हर चीज में, फर्न्स में भी ऐसा लगता है मानो कुछ नया उजलापन आ गया है। एंड हाउसलेस men who have lain down with the fowls open their dim eyes and behold the beauty of the night, ठीक है। और क्या, और जिन लोगों के घर नहीं होते, जो कि बाहर अपनी मुर्गियों के साथ, अपनी बकरियों के साथ
लेटे हुए होते हैं वो भी अपनी धीमी आंखें खोलते हैं और इस नाइट की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। ये ऐसा टाइम होता है जब ना तो पूरी तरीके से रात होती है ना पूरी तरीके से सुबह होती है। At what inaudible summons, at what gentle touch of nature are all these sleepers thus recalled in the same hour to life? ऐसा कौन सा inaudible, inaudible means which could not be heard, ठीक है। समन माने आवाज लगाना किसी को, है ना। ये ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी आवाज लगाती है नेचर, इनऑडिबल, जो कि हमें सुनाई नहीं देती। एट व्हाट जेंटल टच ऑफ नेचर, ऐसा कौन सा हमें हल्का सा टच देती है नेचर, कि ये सारे सोए हुए लोग, लोग माने इंसान भी, जानवर भी, मुर्गा भी, शीप भी, कैटल भी, सारे जो हैं ये जितने भी सोए हुए थे अभी तक, 10 रिकॉर्ड इन द सेम आवर टू लाइफ, एक ही साथ सारे के सारे जागृत हो जाते हैं, उठ जाते हैं। डू द स्टार्स रेन डाउन एन इन्फ्लुएंस और डू वी शेयर सम थ्रिल ऑफ मदर अर्थ बिलो आवर रेस्टिंग बॉडीज? क्या स्टार्स कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ऊपर, या जो मदर अर्थ है वो हमारी रेस्ट करती हुई बॉडीज को एक साथ कुछ थ्रिल दे देती है, एक साथ कुछ ऐसा उत्साहवर्धक दे देती है हमें कि हम सारे के सारे इकट्ठे ही उठ जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो कॉक हो, चाहे वो कैटल हो, चाहे वो शीप हो, चाहे वो बर्ड्स हो, है ना। Even shepherds and old country folk who are the deepest read in these arcana, sorry, it should not be read, even shepherds and old country folk who are the deepest read in these arcana have not a guess as to the means or purpose of this nightly resurrection. जो लोग भी इस पुराने मतलब देहात के इलाके के जितने भी शेपर्ड्स हैं, मतलब चरवाहे हैं, या जो पुराने सयाने लोग हैं जो कि डीपेस्ट रेड है, मतलब बहुत होशियार लोग हैं, है ना। रेड मैंने यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे डीपेस्ट रेड जो है ये इन लोगों को बोला गया है, ओल्ड कंट्री फोक को, जो कि समझदार, यहाँ पे डीपेस्ट रेड मतलब पढ़े लिखे नहीं कहना है, समझदार, ठीक है, वाइज। Wise old country folk even cannot give a proper answer why this nightly resurrection happens, कि ये सारे के सारे इस समय में इकट्ठे कैसे उठ जाते हैं, इसका जवाब उन लोगों के पास भी नहीं है, ठीक। Towards 2 in the morning they declare the thing takes place, वो बोलते हैं कि करीब 2 बजे के करीब सुबह ये घटना होती है। एंड नीदर नो नॉर इंक्वायर फर्दर, इससे ज्यादा वो लोग जानते भी नहीं और ना जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पर उन्हें पता है कि करीब 2 बजे के आसपास ये चीज होती है, ठीक। एंड एट लीस्ट इट इज अ प्लेजेंट इंसिडेंट, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही खुशनुमा एक घटना होती है। We are disturbed in our slumber only like the luxurious mountain that we may the better and more sensibly relish it. मोंटेन एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे, तो वो बोलते हैं कि हम अपनी नींद से उतना ही जागते हैं जैसे मोंटेन ने कहा that we may the better and more sensibly relish it, कि हम उसे और अच्छी तरीके से और सेंसिबल होकर के उसका आनंद उठा पाए। relish करना माने एंजॉय कर पाए उसे, ठीक है। सिर्फ इतनी ही हमारी नींद उस समय डिस्टर्ब होती है कि हम उसको एंजॉय कर पाते हैं। वी हैव अ मोमेंट टू लुक अपॉन द स्टार्स, वी गेट अ टाइम व्हेन वी कैन लुक अपॉन द स्टार्स एट दैट टाइम एट 2 o'clock. And there is a special pleasure for some minds in the reflection that we share the impulse with all outdoor creatures in our neighborhood. और ये जानकर बहुत ही अनोखा सा हमें प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है कि हम ये सेम इम्पल्स हम किसके साथ शेयर कर रहे होते हैं, जितने भी क्रीचर्स उस समय बाहर होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। अभी जैसे पीछे मेंशन किया था ना, चाहे वो कॉक हो, चाहे शीप हो, चाहे कैटल हो, चाहे बर्ड्स हो, इन सब के साथ हम एक साथ इस इम्पल्स को, इस फीलिंग को शेयर करते हैं, ठीक। दैट वी हैव एस्केप्ड आउट ऑफ आवर बेस्टाइल ऑफ सिविलाइजेशन, कि हम बेस्टाइल, यहाँ पे एक्चुअली बेस्टाइल वाज अ फोर्ट, एक फोर्ट था, किला था, तो वो बोलते हैं कि हम इस सिविलाइजेशन रूपी किले से, दिस आउट ऑफ द बेस्टाइल ऑफ सिविलाइजेशन जो यहाँ पर है, ये अगर फिगर ऑफ स्पीच के रूप में बोला जाएगा तो इट इज अ मेटाफर, ये एक मेटाफर है। मतलब हमने इस सिविलाइजेशन को किले का रूप दिया और बोला कि किले जैसा नहीं है, बोला हमने किला ही है, कि ये जो किले का, जो हमारे किले रूपी जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, हम उससे थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं, हम एस्केप कर जाते हैं उससे। एंड आर बिकम फॉर द टाइम बीइंग अ मियर काइंडली एनिमल एंड अ शीप ऑफ नेचर्स फ्लॉक, और उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, फॉर द टाइम बीइंग माने फॉर अ लिटिल टाइम, व्हाट वी बिकम इज अ मियर काइंडली एनिमल, हम एक जानवर,
सीधा सा सादा सा जानवर बन जाते हैं, अ शीप ऑफ नेचर्स फ्लॉक। देखो, नेचर के झुंड का हम एक शीप बन जाते हैं। हम कैसे बन जाते हैं? हम नेचर के साथ ही मिल जाते हैं। जैसे शीप नेचर के लिए एक बिल्कुल फेमिलियर चीज है, ऐसे ही हम भी अपनी सिविलाइजेशन, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन से बाहर निकल के नेचर के ही ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, मतलब परफेक्टली नेचुरल बन जाते हैं। ठीक। When that hour came to me among the pines, जब वो समय मेरे लिए उस पाइन के बीच में आया, जब मैं वहां पे था लेटा हुआ, I awakened thirsty, जब मेरी नींद खुली तो मैं कैसा था? I was feeling thirsty, I wanted water. My tin was standing by me half full of water. मेरे पास मेरा टिन था, उस समय बॉटल टिन के फॉर्म में हुआ करती थी, तो बोल रहे कि मेरे पास मेरा टिन था जो कि आधा भरा था पानी से। आई एम्प्टीड इट एट अ ड्रॉट, एक ही घूंट में, ड्रॉट मीन्स घूंट, एक ही घूंट में मैंने उसे खत्म कर दिया। एंड फीलिंग ब्रॉड अवेक आफ्टर दिस इंटरनल कोल्ड एस्पर्जन, सैट अपराइट टू मेक अ सिगरेट। और उसके बाद मैं बिल्कुल जागा हुआ था। ठीक है, ये जो ठंडा पानी मेरे पेट में गया, उससे और नींद मेरी खुल गई, और फिर मैं सिगरेट जलाने के लिए बैठ गया। ठीक। द स्टार्स वर क्लियर, द सेम थिंग दैट ही वाज मेंशनिंग अर्लियर, है ना? तारे बिल्कुल साफ चमक रहे थे, कलर्ड एंड ज्वेल लाइक। और देखो बिल्कुल कैसे थे? जवाहरात की तरह। ठीक है, आभूषण की तरह, ज्वेल लाइक। यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है, अगर हम इसे फिगर ऑफ स्पीच में बोले तो ये एक सिमिली होता है। ठीक है, उपमा अलंकार है। स्टार्स को किससे कंपेयर किया है? स्टार्स को कंपेयर किया है आभूषण से, ज्वेल के जैसा। ठीक है, बट नॉट फ्रॉस्टी, लेकिन फ्रॉस्ट से भरे हुए नहीं दिख रहे थे। फ्रॉस्ट माने होता है कोहरा जैसा नहीं था, बिल्कुल साफ था। ठीक, धुंधले नहीं थे, बिल्कुल क्लियर थे। अ फेंट सिल्वरी वेपर स्टूड फॉर द मिल्की वे। मिल्की वे के बदले में क्या दिख रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे कि एक धूमिल सी, फेंट माने जो हल्की सी होती है, बहुत वेरी लाइट है, सिल्वरी वेपर, सिल्वर कलर की धुंध जैसी नजर आ रही थी मिल्की वे के रूप में। ऑल अराउंड मी, मिल्की वे एज यू ऑल नो, है ना, हमारा जो आकाश गंगा है उसे मिल्की वे बोलते हैं। ऑल अराउंड मी द ब्लैक फर पॉइंट्स स्टूड अपराइट एंड स्टॉक स्टिल। और चारों तरफ मेरे काले, अभी कैसे दिख रहे हैं वो? फर पॉइंट्स माने नुकीले जो पत्ते थे, किसके? पाइन में था ना, पाइन के जंगल के बीच में था। जो काले नुकीले पत्ते थे वो बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे और शांत खड़े हुए थे। अभी ये काले क्यों हैं? क्योंकि रात काली है, इसलिए उसके पत्ते भी काले नजर आ रहे हैं। बाय द whiteness of the pack saddle I could see Modestine walking round and round at length of her tether. टेदर माने खूंटी। जिस खूंटी से मॉडेस्टाइन बंधी हुई थी, उस खूंटी में मॉडेस्टाइन के पीठ पे पैक सैडल लगा हुआ था। बैठने के लिए जो सैडल लगाते हैं ना, घोड़ों के ऊपर भी आपने देखा होगा, बैठने के लिए एक बिछाते हैं, तो उस वो जो होगा उसका वाइट होगा, वाइट कलर का होगा। तो उस वाइटनेस की वजह से मुझे मॉडेस्टाइन दिखाई दे रही थी, जो उसका पर्सनल डोंकी था, पेट डोंकी था, वो दिखाई दे रही थी। वो गोल गोल चक्कर लगा रही थी अपने खूंटे से, जहां पर खूंटा था उसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही थी। आई कुड हियर हर स्टेडिली मंचिंग एट द स्वॉर्ड। और मैं ये भी सुन सकता था कि वो धीमे धीमे चबा रही थी, जैसे ये लोग जुगाली करते हैं ना जैसे जानवर, तो वो धीरे धीरे मंच कर रही थी। इट वॉज च्यूइंग, बट देयर वॉज नॉट अनदर साउंड। उसके अलावा, उसकी मंचिंग के अलावा कोई और आवाज नहीं थी, सेव द इनडिस्क्राइबेबल क्वाइट टॉक ऑफ द रनल ओवर द स्टोन्स। सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी इसके अलावा, उसकी मंचिंग के अलावा, इनडिस्क्राइबेबल क्वाइट टॉक। मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता, इतनी क्वाइट आवाज आ रही थी पत्थरों के बीच से जो धीमे धीमे पानी गिर रहा था। ठीक है, आई ले लेजिली स्मोकिंग एंड स्टडीइंग द कलर ऑफ द स्काई as we call the void of space, from where it showed a reddish gray behind the pines to where it showed a glossy blue black between the stars. और मैं वहां आलस से भरा हुआ स्मोक करता जा रहा था, सिगरेट पी रहा था, और साथ ही साथ स्काई के कलर को देख रहा था, स्काई के रंग को, आसमान के रंग को देख रहा था, जहां पर खाली स्पेस था, वॉइड ऑफ स्पेस, फ्रॉम वेयर इट शोड, जहां पर भी बीच में जगह थी, बोला था ना ईस्टवर्ड जगह थी थोड़ी सी और ऊपर जगह थी, वहां से देख रहा था। कभी कहीं तो वो पाइन्स के बीच में कैसा दिख रहा था? रेडिश ग्रे कलर का दिख रहा था, लाल और ग्रे कलर का दिख रहा था। और दूसरी तरफ जहां पे स्टार्स थे ऊपर की तरफ, वहां पे वो ग्लॉसी ब्लू ब्लैक दिख रहा था। आपको पता ही है, जब सूरज उगेगा तो एक साइड से उगेगा, तो ईस्टवर्ड देख रहा है तो उसको कैसा दिख रहा है? रेडिश ग्रे दिख रहा है। और जबकि सीधा ऊपर देख रहा है तो उसे चमकता हुआ ब्लू ब्लैक कलर नजर आ रहा है। ठीक है, एज इफ टू बी मोर लाइक अ पेडलर आई वियर अ सिल्वर रिंग। और
मैंने उस समय क्या करा था, जैसे एक यात्री कोई कभी पहन लेते हैं, मैंने भी एक सिल्वर रिंग पहनी हुई थी। दिस आई कुड सी फेंटली शाइनिंग एज आई रेज्ड और लोअर्ड द सिगरेट। जब मैं सिगरेट को ऊपर कर रहा था या नीचे कर रहा था, तो वो सिल्वर की रिंग भी हल्की सी शाइन कर रही थी। फेंट करना, मैंने फेंट अभी आपको बताया था, फेंट मतलब बहुत हल्का, ठीक है, शाइन कर रही थी। एंड एट ईच विफ द इनसाइड ऑफ माई हैंड वॉज इल्यूमिनेट। और जब भी मैं कश ले रहा था, विफ लेना मतलब जब भी कश ले रहा था सिगरेट का, तो मेरा हाथ के अंदर वाला तरफ जो है वो चमक रहा था, क्योंकि कश लेने में उसकी सिगरेट के थ्रू वो जो सिल्वर है वो भी चमक रहा होगा। एंड बिकेम फॉर अ सेकंड द हाईएस्ट लाइट इन द लैंडस्केप। और क्योंकि मेरे हाथ के अंदर वो सिल्वर चमक रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे इस दृश्य में सबसे ज्यादा चमकीला वही है, ठीक है, सबसे ज्यादा लाइट वाला वही है, ठीक। A faint wind, more like a moving coolness than a stream of air, passed down the glade from time to time. एक हल्की सी हवा जो है वो आ रही थी। कहां से आ रही थी? मोर लाइक अ मूविंग कूलनेस, ऐसा लग रहा था जैसे बहता हुआ ठंडक आ रही है मेरे पास, ठीक है। हवा जैसी ज्यादा फील नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था ठंडक बह के मेरे पास आ रही है। पास डाउन द ग्लेड फ्रॉम टाइम टू, जो बगल का जो ग्लेड था ना जहां पर पानी था, उसमें से बीच बीच में से हवा बड़ी ठंडी सी आ रही थी। सो दैट इवन इन माई ग्रेट चैम्बर द एयर वॉज बींग रीन्यूड ऑल नाइट लॉन्ग। कि मेरे उस चैम्बर में, ग्रेट चैम्बर, चैम्बर क्यों बोला उसको, ऐसा चारों तरफ से उसमें पेड़ थे ना, तो ऐसा फील हो रहा था मान लो कि एक कोई कमरा है, वहां पर भी हवा बार बार रिन्यू हो जा रही थी, नई हवा आ रही थी, पुरानी हवा निकल, मतलब हर बार ठंडी हवा नई ताजी आती जा रही थी पूरी रात भर, ऑल नाइट लॉन्ग। I thought with horror of the inn at Chasserades and the congregated nightcaps. मैं सोचने लगा कैसे मैं उन होटलों में रुकता था। इन माने होते हैं रेस्ट हाउसेस, है ना, कि वहां चैसरेट्स में भी एक इन होगा कहीं वो जहां रुकता होगा। और कॉन्ग्रीगेटेड नाइट कैप्स, जब कभी रात में मैं कहीं रास्ते में होता था तो कोई सराय मिल जाता था, वहां पे जब मैं रुकता था, उसके हॉरर के बारे में सोच, मतलब वो कितना डेड होता था और आज कितना लाइवली है मेरे लिए, ठीक है। विद हॉरर ऑफ द नॉक्चर्नल प्राउसेस ऑफ क्लर्क्स एंड स्टूडेंट्स। रात में वहां पे कभी क्लर्क्स घूम रहे होते थे, मतलब वहां के जो कर्मचारी होते थे, कभी वो घूम रहे होते थे, कभी स्टूडेंट्स घूम रहे होते थे। ऑफ हॉट थिएटर्स एंड पास कीज एंड क्लोज रूम्स। वहां पर थिएटर्स हुआ करते थे, रात रात भर थिएटर चल रहा है। उस समय फिल्में तो थी नहीं, थिएटर मीन्स जहां पर की प्लेज करे जाते हैं, नाटक करे जाते हैं, वो थिएटर्स, ठीक है। कभी चाबियों की आवाज आती है, कभी बंद कमरों के मतलब खुलने बंद होने की आवाज आती है, और थिएटर्स की चहल पहल सुनाई देती है। तो मैं उस हॉरर के बारे में सोच रहा था। आई हैव नॉट ऑफन एंजॉयड अ मोर सीरीन पोजेशन ऑफ माई सेल्फ, नॉर फेल्ट मोर इंडिपेंडेंट ऑफ मटीरियल नीड्स। आज तक मैंने कभी इतना एंजॉय नहीं किया जितना आज मैं अपने आप को शांत होकर के, सीरीन मीन्स वेरी वेरी क्वाइट, उसको बोलते हैं, बहुत शांत जो चीज होती है उसे सीरीन बोला जाता है, शांत और बहुत ही क्वाइटनेस में है, ठीक है। तो आज तक मैंने अपने आप को इतना एंजॉय नहीं किया था जितना मैं अभी कर रहा था। नॉर फेल्ट मोर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल एड्स। और आज ही मुझे ये भी फील हो रहा था कि मुझे किसी भी मटेरियल एड की जरूरत नहीं है, मैं उनसे फ्री हो चुका हूँ, ठीक है। मतलब मुझे वो भीड़ भाड़ लोग पसंद नहीं। The outer world from which we cower into our houses seemed after all a gentle habitable place. ये जो बाहरी दुनिया है, जो नेचर की दुनिया है, इसमें इससे जितना हम लोग बचते हैं ना, जब अपने घरों को चले जाते हैं, वो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ही प्यारी सी, रहने लायक, हैबिटेबल मतलब ऐसी जगह जहां पे रहा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड हैबिटेबल। बहुत प्यारी सी रहने लायक जगह है, मतलब हम बाहर भी रह सकते हैं, वील फील मोर लाइक वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ this open nature. And night after night, a man's bed, it seemed, was laid and waiting for him in the fields where God keeps an open house. और हर रात ऐसा लगता है मानो बिस्तर आराम से अच्छे से बिछा हुआ है और आपका इंतजार कर रहा है ओपन में। भगवान ने हमें एक ओपन हाउस दे रखा है। क्या है ये ओपन हाउस? नेचर का ओपन हाउस है, ठीक है। और इस ओपन हाउस में भगवान हमारे लिए रोज वेट करते हैं, हमारे लिए अच्छा खासा बिस्तर घास का उन्होंने बिछा रखा है, और वो चाहते हैं कि हम इसे भी एक बार एक्सपीरियंस करके देखें। I thought I had rediscovered one of those truths which are revealed to savages and hid from political economists. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे दोबारा खोज लिया है, रीडिस्कवर्ड। क्या चीज को? उस सच को खोज लिया है जो कि हमारे सैवेजेस, वैसे तो मतलब होते हैं मतलब होता है जो कि सिविलाइज्ड नहीं होते, पर यहाँ पे सैवेजेस मीन्स हमारी एंशियंट जो जनरेशन थी, हमारे जो आदिकाल, जो हमारा आदि मानव था ना, उस व्यक्ति को वो सच्चाई पता थी, बिकॉज ही नेवर हैड अ हाउस टू लिव इन।
है ना, या तो वो केव्स में रहते थे या वो ओपन में रहते थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बोला है ना, हिड फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स माने छुपा हुआ है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मीन मॉडर्न मैन, आज का जो आदमी है उससे ये चीज छुपी हुई है। लेकिन हमारे जो आदि मानव थे, हमारा जो अर्लियर हमारी जो सिविलाइजेशन थी, उसको ये सच्चाई पता थी कि नेचर कितनी खूबसूरत है, या गॉड ने हमें क्या क्या दे रखा है, उन्हें वो सब कुछ पता था। ठीक है, and hid from political economics. At least I had discovered a new pleasure for myself. कम से कम ऐसा तो था ही कि मैंने अपने लिए एक नया आनंद खोज लिया था, and that pleasure was staying outdoors, बाहर रहना। ठीक है, ओपन स्काई के नीचे रहना, ऐसा मैंने खोज लिया था। तो दिस वॉज अ न्यू प्लेजर फॉर मी। एंड येट इवन वाइल आई वॉज एक्सल्टिंग इन माई सॉलिट्यूड, आई बिकेम अवेयर ऑफ अ स्ट्रेंज लैक। और जब मैं ऐसे बहुत खुश होकर के नेचर में, सॉलिट्यूड इज समथिंग लाइक, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिट्यूड एंड बीइंग लोनली। सॉलिट्यूड इज व्हेन यू एंजॉय योर बीइंग अलोन, एंड लोनली इज व्हेन यू फील सैड अबाउट बीइंग अलोन। ठीक है, ये दो चीजों डिफरेंस होता है सॉलिट्यूड और लोनली फील करने में। तो ही वॉज एंजॉइंग हिज कंडीशन दैट ही वॉज अलोन एट दैट टाइम। आई बिकेम अवेयर ऑफ अ स्ट्रेंज लैक, एक अजीब सी कमी मुझे महसूस हो रही थी। आई विश्ड अ कंपेनियन टू लाई नियर मी इन द स्टारलाइट, साइलेंट एंड नॉट मूविंग बट एवर विद इन टच। ऐसा मन कर रहा था कि कोई साथी होता मेरे साथ, जिसके साथ मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर कर पाता। इस स्टारलाइट में वहां वो साइलेंट ही रहता, मूव नहीं करता, लेकिन टच में रहता, तो मुझे ऐसा फील होता कि हम दोनों साथ में उस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे हैं। फॉर देर इज अ फेलोशिप मोर क्वाइट इवन दैन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड से भी ज्यादा शांत एक और चीज होती है, ज्यादा प्यारी एक और चीज होती है, वो फेलोशिप की मुझे जरूरत। एंड विच राइटली अंडरस्टूड इज सॉलिट्यूड मेड परफेक्ट। और अगर सही हमें वो साथ मिल जाए, तो ऐसा लगता है जैसे वो सॉलिट्यूड भी परफेक्ट हो गया। And to live out of doors with the woman a man loves is of all the lives the most complete and free. And he says that if a man gains a woman, if a man has a woman who is best for him, then his life becomes complete and free, the most complete and free. He becomes complete in itself, complete in himself, and the most free of every other creature. As I thus lay between content and longing, एक तरफ से तो संतुष्ट था कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, और एक तरफ से एक डिजायर थी कि एक कंपेनियन मेरे साथ और होता। अ फेंट नॉइज टोल्ड टुवर्ड्स मी थ्रू द पाइन्स, एक हल्की सी आवाज मुझे आई जिससे मेरा ध्यान चीड़ के पेड़ों की तरफ गया। I thought at first it was the crowing of cocks or the barking of dogs at some very distant farm. At first I thought that it was some cocks that were crowing or dogs that were barking at some फार्म, दूर के किसी फार्म में, डिस्टेंस माने दूर, दूर किसी फार्म में डॉग्स या तो बाग कर रहे हैं या मुर्गे क्रो कर रहे हैं। बट स्टेडीली एंड ग्रेजुअली इट टुक आर्टिकुलेट शेप इन माई ईयर्स। और धीरे, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे उसका शेप मुझे नजर आया, मेरे कानों में अच्छे से मुझे समझ आया। until I became aware that a passenger was going by upon the high road in the valley and singing loudly as he went. जैसे जैसे वो पैसेंजर पास आता गया होगा ना, उसकी आवाज और ज्यादा क्लियर होती गई होगी। मुझे समझ आया कि एक कोई यात्री और जा रहा है, जो कि उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, वैली से नीचे से आ रहा है वो, और चलते चलते जोर जोर से गाना गा रहा है। So it was the voice of a person singing who was climbing up the hill. There was more of goodwill than grace in his performance. उसकी आवाज में मतलब एक फ्रीनेस थी, एक गुडविल था, मतलब अपने मजे में गा रहा था वो। उतना सुंदर तो नहीं गा रहा था, लेकिन अपने आनंद के लिए गा रहा था। बट ही ट्रोल्ड विद एम्पल लंग्स, लेकिन उसकी जरूर मतलब उसका लंग्स में एयर बड़ी जरूर अच्छी होती होगी कि चढ़ते चढ़ते भी इतने अच्छे से गा रहा था। एंड द साउंड ऑफ हिज वॉइस took hold upon the hillside and set the air shaking in the leafy glens. और उसकी आवाज से आसपास के पूरे हिल साइड में जो है उसकी आवाज एको कर रही थी। ठीक है, आई हैव हर्ड पीपल पासिंग बाय नाइट इन स्लीपिंग सिटीज। सोए हुए शहरों में मैंने लोगों को गुजरते हुए देखा है। सम ऑफ देम सैंग, कुछ कुछ गाते भी हैं। वन आई रिमेंबर प्लेड लाउडली ऑन बैक पाइप्स, एक तो मुझे याद भी है कि बैक पाइप बजाते हुए जा रहा था। बैक पाइप आपने सुना होगा, एक बड़ा सा बैग सा होता है और उसमें एक पाइप लगा होता है, ठीक है, वो बजाता हुआ जा रहा था। आई हैव हर्ड द रैटल ऑफ अ कार्ट और कैरेज स्प्रिंग अप सडनली आफ्टर आवर्स ऑफ स्टिलनेस। कभी कभी बहुत देर तक बहुत शांत रहता है, फिर कभी एक कैरेज की आवाज सुनाई देती है, एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है
है ना, एंड पास फॉर सम मिनट्स विद इन द रेंज ऑफ माई हियरिंग एज आई ले अबेड। जब मैं सिटी में होता हूँ, जब सोया हुआ होता हूँ, तो कभी कभी बीच में गाड़ियों की आवाज मुझे सुनाई देती है। देयर इज अ रोमांस अबाउट ऑल हु आर अब्रॉड इन द ब्लैक आवर्स एंड विद समथिंग ऑफ अ थ्रिल वी ट्राई टू गेस देयर बिजनेस। बड़ा रोमांस है, मतलब रोमांस हियर मीन्स वेरी गुड काइंड ऑफ एन इमेजिनेशन इज नोन एज रोमांस, है ना, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन। ठीक, मतलब बड़ा सोच आ रहा है मुझे इस बात का कि इतने रात के ब्लैक आवर्स है ना, अभी उजाला तो हुआ नहीं, कि इतने रात के अंधेरे में भी कौन है ऐसा इतनी थ्रिल, मतलब इतना थ्रिल्ड होकर के वो गा रहा है, और क्या उसका ऐसा काम होगा जो इस समय वो कहीं को जा रहा है। बट हियर द रोमांस वॉज डबल, लेकिन यहाँ तो ये रोमांस और ज्यादा था। फर्स्ट दिस ग्लैड पैसेंजर फिट इंटरनली विद वाइन हु सेट अप हिज वॉइस इन म्यूजिक थ्रू द नाइट। ये जो पैसेंजर है ना, इसने कुछ ना कुछ वाइन ले रखी है, और साथ में इसकी वॉइस से पता चल रहा है जो भी रात में ये गाता हुआ जा रहा है। एंड देन आई ऑन द अदर हैंड बकल्ड इनटू माय सैक एंड स्मोकिंग अलोन इन द पाइन वुड्स बिटवीन 4 and 5,000 फीट टुवर्ड्स द स्टार। बोल रहे हैं कि दूसरी तरफ मैं हूं, जो कि मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ हूं, स्लीपिंग बैग होगा उसके पास, उसमें लेटा हुआ हूं अकेले इन पाइन के बीच, जंगल के बीच में स्मोक करते हुए। स्टार्स और मेरे बीच में 4-5,000 फीट का डिफरेंस वो कह रहे हैं, मतलब ऐसा नजर आ रहा है। इट इज नॉट दैट यू ऑफ कोर्स नो दैट 4-5,000 फीट का डिफरेंस नहीं है, कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनसे इतनी ही दूरी पर हूं, और एक तरफ से मैं हूं, एक तरफ से वो चलते चलते गा रहा है। ठीक है। when I awoke again Sunday 29 September, संडे 29 सितंबर को जब मैं दोबारा उठा, many of the stars had disappeared, वो जा चुके थे। only the stronger companions of the night still burned visibly overhead। कितना अच्छा लिखा है देखो यहाँ पे, stronger companions of the night, जो रात के और मजबूत साथी थे, मतलब जो थोड़े नजदीक के स्टार्स थे वो अभी भी चमक रहे थे। बर्न विजिबली ओवरहेड, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टार्स को ही बोला है, कुछ ऐसे स्टार्स जो कि ज्यादा देर तक चमकते हैं, उनमें से एक तो मून भी है, हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है ना। तो जो ज्यादा मजबूत साथी थे नाइट के, वो अभी बस चमक रहे थे, बाकी डिसअपियर हो चुके थे। ठीक, एंड अवे टुवर्ड्स द ईस्ट आई सॉ अ फेंट हेज ऑफ लाइट अपॉन द होराइजन। और क्षितिज पर दूर मैंने क्या देखा, एक धीमी सी हल्की सी लाइट आती हुई देखी। सच एज had been the Milky Way when I was last awake। जब पिछली बार मैं उठा था तो जैसा मिल्की वे मुझे दिख रहा था, आकाश गंगा नजर आ रही थी हल्की सी फेंट सी, वैसे ही अबे मुझे हल्की सी रोशनी नजर आई। डे वॉज एट हैंड, मतलब दिन उग रहा था धीरे धीरे। आई लिट माई लैंटर्न, मैंने अपना लैंटर्न जलाया, लैंप जलाया। एंड बाई इट्स ग्लो वार्म लाइट पुट ऑन माई बूट्स एंड गेटर्स, मैंने अपने गेटर्स पहने उस पे चढ़ने के लिए मॉडेस्टाइन पे, और मैंने अपने बूट्स पहने। देन आई ब्रोक अप सम ब्रेड फॉर मॉडेस्टाइन, फिर मैंने मॉडेस्टाइन को ब्रेड दी। फिल्ड माई कैन एट द वाटर टैप, वाटर टैप लिखा देखो, अब तो वो स्रोत था जो पानी का, वहां से ही फिल्ड हिज कैन ऑफ वाटर। एंड लिट माई स्पिरिट लैम्प टू बॉयल माई सेल्फ सम चॉकलेट, और मैंने फिर अपना स्पिरिट वाला लैम्प जलाया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव सम ब्रेकफास्ट, दैट इज बॉयल सम चॉकलेट, हॉट चॉकलेट लेने के लिए। द ब्लू डार्कनेस ले लॉन्ग इन द ग्लेड वेयर आई हैड सो स्वीटली स्लम्बर्ड, वो जो नीली सी डार्कनेस थी वो बहुत देर तक उसके आसपास नजर आती रही मुझे, जहां पे मैं इतने प्यार से सोया हुआ था अभी तक, इतने प्यारी नींद मुझे वहां पर आई थी। बट सून देयर वाज अ ब्रॉड स्ट्रीक ऑफ ऑरेंज, लेकिन जल्दी ही ऑरेंज कलर बिल्कुल फैल गया, रोशनी आ गई। मेल्टिंग इनटू गोल्ड, पहले ऑरेंज हुआ, देन इट मेल्टेड इनटू गोल्ड अलोंग द माउंटेन टॉप्स ऑफ द विवराई। कहाँ थे हम? माउंटेन टॉप्स में थे। विवराई, विवराई एक जगह है, वहां के पहाड़ के ऊपर मैं चढ़ा हुआ था, माउंटेन टॉप्स के ऊपर था। ठीक है, नाम से ऐसा पता चलता है कि ये कहीं फ्रांस में जगह होती होगी। ठीक, आई एम नॉट श्योर। तो पहले ऑरेंज कलर हुआ, फिर वो गोल्ड में टर्न हुआ ऑन द माउंटेन टॉप्स ऑफ विवराई। ठीक है, अ solemn glee possessed my mind at this gradual and lovely coming in of the day। मुझे ऐसा लगा जैसे कि बहुत ही खुशनुमा सा मेरे दिमाग में एहसास हो रहा है, फीलिंग हो रही है एट द ब्यूटिफुल कमिंग इन ऑफ द डे। कितनी सुंदरता से ये जो दिन आ रहा है, इससे मेरा दिमाग खुशी से भरा हुआ था। आई हर्ड द रनल विद डिनाइट, मैंने वो पानी का जो बहना है उसे बड़े आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर इट ऑल द टाइम। आई लुक्ड अराउंड मी फॉर समथिंग ब्यूटिफुल एंड अनएक्सपेक्टेड, कुछ देखने लगा मैं अपने आसपास की कुछ नजर आ जाए। बट द स्टिल ब्लैक पाइन ट्रीज, द हॉलो ग्लेड, द मंचिंग एस, देखो यहाँ पर एक जगह मेंशन आ गया कि वो एस था, डोंकी था, है ना। तो काला जो पाइन ट्रीज, काले पाइन ट्रीज, बिकॉज इट वॉज स्टिल नॉट वेरी ब्राइट, है ना, तो अभी भी काले पाइन ट्रीज नजर आ रहे हैं। और जो ग्लेड है वहां की, जो
पहाड़ का किनारा है, जो एक नदी बहती हुई नजर आ रही है, वो जो सीन है सारा, है ना, और ये जो मंच करता हुआ, जो च्यू करता हुआ डोंकी है मेरे साथ, रिमेन्ड अनचेंज्ड इन फिगर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। नथिंग हैड ऑल्टर्ड बट द लाइट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ लाइट चेंज हुई थी। एंड दैट इंडीड शेड ओवर ऑल अ स्पिरिट ऑफ लाइफ एंड ऑफ ब्रीदिंग पीस। और सिर्फ उसी लाइट के चेंज होने से सब में ऐसा लग रहा था जैसे एक लाइफ की स्पिरिट आ गई हो, है ना, और जैसे सांस लेता हुआ शांति हमारे पास आ गई, ठीक है, लाइव पीस। एंड मूव्ड मी टू अ स्ट्रेंज एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन मींस एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, और मैं बहुत ही ज्यादा उस समय खुश था। आई ड्रैंक माई वाटर चॉकलेट, समटाइम्स इट इज टेकन विद मिल्क, तो मैंने अभी तो पानी के साथ लिया क्योंकि और तो कुछ था नहीं। आई ड्रैंक माई वाटर चॉकलेट विच वॉज हॉट इफ इट वॉज नॉट रिच, रिच क्यों नहीं था, ज्यादा क्रीमी क्यों नहीं था, क्योंकि पानी था उसमें, है ना। एंड स्ट्रोल्ड हियर एंड देयर एंड अप एंड डाउन अबाउट द ग्लेड, उसी पहाड़ में आसपास आसपास में चलता रहा, कभी इधर उधर कभी ऊपर नीचे। while I was thus delaying, a gush of steady wind as long as a heavy sigh, जैसे लंबी सांस हम छोड़ते हैं उतनी ही लंबी बढ़िया सुंदर सी हवा आसपास मेरे बहने लगी। poured डायरेक्ट आउट ऑफ द क्वार्टर ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के हवा के साथ साथ एक बड़ी ठंडी सी स्टेडी हवा मेरे पास आई। इट वॉज कोल्ड एंड सेट मी स्नीजिंग, इतनी ठंडी थी कि मुझे आई हैड टू स्नीज, मुझे छींके आने लगी, दैट इज कॉल्ड स्नीजिंग, ठीक है। द ट्रीज नियर एट हैंड टॉस देयर ब्लैक प्लूम्स इन इट्स पैसेज, जब हवा चल रही थी तो उससे ऐसा लग रहा था उसके रास्ते में पेड़ भी हिल हिल के उसको वेलकम कर रहे थे। एंड आई कुड सी द थिन डिस्टेंट स्पायर्स ऑफ पाइन अलोंग द एज ऑफ द हिल रॉक स्लाइटली टू एंड फ्रो अगेंस्ट द गोल्डन ईस्ट, ईस्ट जो गोल्डन हुआ हुआ था क्योंकि कि सूरज उग रहा था वहां से, तो मैं देख सकता था कि पाइन के जो पतले पतले से पत्ते होते हैं वो अपनी एजेस को हिला करके रॉक कर रहे थे स्लाइटली टू एंड फ्रो, ठीक है, आगे पीछे ऐसे हिल रहे थे ईस्ट की तरफ देख के। 10 minutes आफ्टर द सनलाइट स्प्रेड एट अ गैलप अलोंग द हिल साइड, 10 मिनट के बाद ही ऐसे लगा जैसे कि सूरज की रोशनी गैलप करके आ रही हो। गैलप करना मतलब वॉकिंग वेरी फास्ट, जो हॉर्स जब घोड़ा दौड़ता है उसे कहते हैं गैलपिंग। 10 मिनट में ही सनलाइट ऐसे आई मानो वो दौड़ के आ रही हो हिल साइड से। स्कैटरिंग शेडोज एंड स्पार्कल्स एंड द डे हैड कम कंप्लीटली, अपनी चारों तरफ शेडोज बिखेरती हुई, क्योंकि जब सूरज उग जाता है तो शेडो पड़ती है, और चमक बिखेरती हुई आ गई। और इससे हुआ क्या कि दिन जो है पूरी तरीके से आ गए, ठीक है। आई हेसन टू प्रिपेयर माई पैक, मैं अपना पैक प्रिपेयर करना, हेसन माने क्विकन, मैं फटाफट अपना पैक प्रिपेयर करने लगा। एंड टैकल अ स्टीप एसेंट दैट ले बिफोर मी, और एक तीखी चढ़ाई, एसेंट माने होता है ऊपर को जाना, ठीक है, स्टीप मतलब बहुत शार्प, ठीक है, बहुत तीखी चढ़ाई चढ़ के मुझे अपने अभी ऊपर जाना था। बट आई हैड समथिंग ऑन माई माइंड, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। इट वॉज ओनली अ फैंसी, एक इमेजिनेशन ही थी बस ये। येट अ फैंसी विल समटाइम्स बी इम्पॉर्चुनेट, लेकिन कभी कभी फैंसी को भी सुन लेना चाहिए, है ना, कभी कभी उसे भी ध्यान दे लेना चाहिए कि क्या आपकी वो स्ट्रेंज इमेजिनेशन कह रही है। आई हैड बीन मोस्ट हॉस्पिटेबली रिसीव्ड एंड पंक्चुअली सर्व्ड इन माई ग्रीन कैरावांसराय, बहुत अच्छे से मुझे नेचर ने इस, हॉस्पिटेबली माने बड़ी मेहमान नवाजी हुई है मेरी, ठीक है, और मुझे जो कुछ भी सर्व हो सकता था, मुझे जो कुछ भी मेरी सेवा हो सकती थी वो भी करी है। कहाँ? इस ग्रीन कारवां सराय में। कारवां आपको पता ही है, रास्ते में चलते समय जब हमें कोई रहने की जगह मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड अ सराय, है ना, उर्दू का वर्ड है कारवां भी और सराय भी। इस हरे भरे कारवां के सराय में मुझे बहुत अच्छी मेहमान नवाजी भी मिली है, और मेरी बहुत अच्छी सेवा, मतलब पानी भी अगल बगल में ही मिल गया, कमरा जैसा एक जगह मिल गई। द रूम वॉज एयरी, कमरा जो था बहुत एयरी था, वाटर एक्सेलेंट, पानी बहुत बढ़िया था। एंड द डॉन हैड कॉल्ड मी टू अ मोमेंट, और मुझे डॉन मिली थी, मतलब भोर भी मैंने, भोर से भी मेरी मुलाकात हुई थी, ठीक है। आई से नथिंग ऑफ द टेपेस्ट्रीज और द इनिमिटेबल सीलिंग, अरे टेपेस्ट्रीज माने होती है जो कमरे में सजावट की जाती है, ठीक है, और इनिमिटेबल मान जिसका कोई कंपेयर ही नहीं है, जिसको इमिटेट ही नहीं करा जा सकता, है ना। जो सीलिंग थी, जो छत थी, और जो सुंदरता के लिए जो डेकोरेशन किया हुआ था कमरे में, उसके तो क्या ही कहने, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। आई से नथिंग माने उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो इतना सुंदर था। नॉर येट ऑफ द व्यू विच आई हैड कमांडेड फ्रॉम द विंडोज, और खिड़कियों से जो मुझे व्यू दिखा था वो तो बहुत ही शानदार था। वो खिड़कियां क्या थी, कौन सी खिड़की थी? एक तो उसकी सीलिंग वाली खिड़की थी, क्योंकि सीलिंग ओपन थी, मतलब
छत की साइड, ऊपर की साइड खुला हुआ था, आसमान दिख रहा था, और एक ईस्ट की तरफ उसे खिड़की मिली थी. बट आई फेल्ट आई वॉज इन समवन्स डेट फॉर ऑल दिस लिबरल एंटरटेनमेंट. पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी का कर्जदार हूं, जो इतना सुंदर एंटरटेनमेंट मेरा पूरी रात भर हुआ है. आई हैड टू पे माई डेट. कुछ तो मुझे कर्ज इसका चुकाना पड़ेगा. एंड सो इट प्लीज मी. तो इसलिए मेरा मन हुआ, इन अ हाफ लाफिंग वे, आधा मैं हंस भी रहा था अपने ऊपर ही, टू लीव पीसेस ऑफ मनी ऑन द टर्फ एज आई वेंट अलोंग. मेरा मन हो रहा था कि कुछ पैसा मैं वहां पर घास के ऊपर छोड़ के जाऊं. जब मैं यहाँ से जाऊं तो कुछ पैसा मैं छोड़ के जाऊं. जैसे जब हम होटल में रुकते हैं तो किराया देते हैं वहां का, ऐसे मेरा मन हुआ कि इतना सुंदर कमरा मुझे नेचर ने दिया, इतनी सुंदर सीलिंग, इतनी सुंदरता उस कमरे में भरी हुई थी, खिड़कियां इतनी शानदार थी कि मेरा मन हुआ मैं वहां पे कुछ पैसा छोड़ के जाऊं. अंटिल आई हैड लेफ्ट इनफ फॉर माई नाइट्स लॉजिंग. उतना तो कम से कम छोड़ू कि एक रात रुकने का जितना किराया होता है उतना तो मैं दे के जाऊं. आई ट्रस्ट दे डिड नॉट फॉल टू सम रिच और चर्लिश ड्रोवर. मैं उम्मीद करता हूं कि वो पैसे किसी अमीर, है ना, या फिर ऐसे ही फालतू घूमने वाले आदमी को नहीं मिले होंगे, किसी जरूरतमंद को ही मिले होंगे. ये उम्मीद करते हुए वहां पे मैं कुछ पैसा भी छोड़ के आया. दिस इज वेरी ऑड बट स्टिल सी द फीलिंग ऑफ द writer or the narrator, that he feels so thankful for nature for giving him this beautiful moment of living under the open sky. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप, है तो ये एक ऐसे के ही फॉर्म में, लेकिन जितना हमने पढ़ा है ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन होगा, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड व्यू द प्रेजेंटेशन वंस मोर. ठीक है. विद दीज वर्ड्स आई बिड यू गुड बाय. टेक केयर एंड स्टडी वेल.